everyone, welcome back to our channel. we Desi Ladies, I'm your host Hanshu, and I'm Neha. and today we are talking about a book which is close to my heart and one of the books which I never thought I would like, but I loved it. So, what it is, Neha? एक था प्यार, एक थी शादी, Okay. और फिर आया हार्टब्रेक का सुनामी. Okay, nice try. Thank you. So, what is the book name? I will always be here for you. Yes, by Himanshu Roy. Yes. One of the good writers. So, also, I wanna pesh a shairi after Irshad, the Irshad. shairi. इरशाद. So, ये प्यार नहीं EMI है दोस्तों. Oh, ये okay. प्यार नहीं EMI है दोस्तों, जिस पे इंटरेस्ट भी लगता है और पेनल्टी भी. भाई साहब, क्या बात, लो, क्या बात. कर दिया क्रिंज, पहला दिया क्रिंज. Okay, moving on, let's move to the story part. Okay, the story revolves around two major characters, Karthik and Anisba. They were school buddies and they fell in love when they were in college. Eventually, they wanted to get married and build a life together, build a home together, live together. But Karthik's father was against their marriage due to some caste and all, but still they got married because प्यार है भाई और प्यार के लिए कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है. So eventually they got married and now it's been 2 years since they are married and they are expecting their first child. So eventually what happens is सारी चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती है. Now they are bit upset, but वो समझने की कोशिश करते हैं कार्तिक और अरिज्मा को कहीं ना कहीं पे. But his father, Kartik's father, is still very upset with all these things कि उसने बिना पूछे, कार्तिक ने मेरे से बिना पूछे शादी की है. बट कहीं ना कहीं एज अ फादर यू स्टार्ट गिविंग अप व्हेन यू हियर कि भाई अब बच्चा होने वाला है, राइट. तो फिर वो वाला एक पॉइंट आता है उनकी लाइफ में जहाँ पे वो मिलने भी जाते हैं अपने बेटे से. बट स्टिल वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है जहाँ पे थिंग्स गेट रियली रियली डर्टी. एंड उसके बाद कार्तिक जो है वो अपने एक फेवरेट जगह पे जाता है एंड उसके फादर भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे जाते हैं. एंड यू नो द फादर रियलाइजेस कि ठीक है, लेट्स जस्ट फॉरगेट एंड मूव ऑन. सो फादर यू नो बोलते कि ठीक है, सब भूल के लेट्स यू नो मूव फॉरवर्ड. एंड जैसे ही कार्तिक भाग के अपने फादर के पास आने वाला होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही डाइज. आई रियली डिडंट वांटेड टू टेल यू गाइस कि वो मर जाता है, बट शी सेड कि नहीं हमें बताना चाहिए एज वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक. That is actually spoil it. That is actually the main story कि मतलब यहाँ से जो actual story है ना वो start होती है. Because starting में ना it's about कि you know दोनों मिलते हैं, उनको प्यार होता है, you know the way he's describing her, it's हो सकता है थोड़ा बहुत ना cringe भी लगे कि यार ठीक है मतलब. Yeah, because he used to call her Angel and she used to call him Teddy. And because he was bit you know healthy type, so वो वाला मुझे कहीं ना कहीं पे cringe लगा था. But still it was so. जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाएगी you will realize कि कैसे स्टोरी में एक सेंटीमेंट को लेकर आया गया है, कैसे एक स्टोरी को आगे बढ़ाकर, कैसे एक डिप्रेशन जैसे टॉपिक को उठाकर कैसे उसको बात किया गया है. सो it was like I was literally crying. So this story is I was in a metro and मैं वापस आ रही थी अपने ऑफिस से and I was crying in the metro itself. And I always write something when I finish the book. So this is I have wrote here यहाँ पे and I'm writing while I'm crying. I said it and क्योंकि वो लास्ट का पार्ट इतना इमोशनल है जहाँ पे you know it's fictional, right? I know कि ये हो ही नहीं सकता है ऐसा, but the storyline is amazing. Writer has done an amazing job, and I would totally read it again when I want to cry. So yeah. I mean, yes, it was an emotional story for me as well because like the moment I saw कि he's dead, I'm like अब क्या मेन लीड को ही आपने लाइक यू नो द मेन लीड इज डेड,
अब इसके आगे क्या है, लेकिन द वे द स्टोरी वेंट आई वाज ऐसा भी हो सकता है, इट वाज लाइक ऐसा भी ऐसा story also have that written handwritten notes, handwritten letters. सीरियसली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस रीडिंग दिस बुक. देखो हम आगे का नहीं बताएंगे, एक हिंट तो दे ही दिया कि जो मेन लीड है कार्तिक वो आई थिंक पीछे भी लिखा हुआ है, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेकिन स्टोरी यहीं से शुरू होती है, दैट इज द मेन थिंग, एंड द वे इट गोज, द वे इट एंड्स, इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी. लाइक ऑब्वियसली अगर आप एज अ रीडर सोचोगे यू विल बी लाइक कि हाँ ये मे बी एज अ नॉन रीडर यू विल बी लाइक भाई ये क्या है. What I really want to tell you this, one of my best friends, बचपन का दोस्त ने मुझे ये वाली गिफ्ट की थी बुक, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं परचेज किया होता खुद से, क्योंकि सेम सिंपल स्टोरी लाइन, और यू नो व्हेन यू सी द, वैसे भी मैं सेलेक्ट करती हूँ बुक्स को इसके कवर के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं कभी उसको नहीं खरीदती, बट माई फ्रेंड, थैंक यू सो मच, एंड शी रिकमेंडेड मी दिस बुक. यस. एंड मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के थोड़ा सा करती हूँ, मेरा लाइक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाला है मेरा, लाइक पर ठीक है. But yes, it like I think you people should read it and you will understand like what depth this book has. Like you know आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत लवी डवी टाइप हो रहा है, मतलब आगे क्या, लेकिन वहीं से ही सारा ट्विस्ट शुरू होता है. The way it ends, it's like So main story begins after he dies. That is the main thing. That's the thing. उसके बाद वो कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करता है और कैसे सारी चीज़ों को संभाल के उसको एक फैमिली को फिर से लेकर आना, एंड उसकी वाइफ आइज़मा को एक नया लाइफ देना, जो कि 9 months प्रेग्नेंट है. And seriously, the way writer has written हिमांशु राय को seriously very good. Like बहुत अच्छे से लिखा है. So yeah, this is it for this one. इतना ही बोल पाएंगे हम, क्योंकि you should read the story. Yes, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे, अगर हमने ज़्यादा बोल दिया तो हम स्टोरी ही रिवील कर देंगे. So I think we should just leave it here for now, and we would definitely recommend you to go and read this book, and do let us know how did you feel after reading this book. So do like, share, comment and subscribe to our channel. Also you can follow us on Instagram. And also suggest what book we should read next or Yes. review next, and we're happy to do so. Yes. Okay. We are definitely looking forward for your comments. Okay, see you next time. Stay sane, stay healthy, and keep smiling always.